Good evening, everyone. Now I am going to start the class. Name of the chapter is force and laws of motion. This is one of the most important chapter of physics. Uh, Today I am going to introduce this chapter. In the previous classes or chapter, we describe the motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity, and acceleration. So let's see here position, velocity, and acceleration. So already we have idea about motion of an object along a straight line in term of its position, velocity, and acceleration. We saw that such a motion can be uniform or non-uniform. It means that uh, according to this one, we have two types of motion. First one is known as uniform, and second one is known as the non-uniform. It means that we have idea about uniform and non-uniform motion. Uh, we try to understand what is the force. Do all motion require a cause? If so, what is the nature of the cause? In this chapter, we shall make an attempt to quench all such curiosities, such as for many centuries, the problem of motion and its cause had puzzled scientists and philosophers. A ball on the ground, when given a small hit, does not move forever. Such observations suggest that rest is the natural state of an object. So, natural state, what is the natural state of an object? Then rest is the natural state of an object. So, see here, rest is the natural state of an object. So if anybody asks us what is the rest, then this is what natural state of an object. This is the natural state of an object. Let's see, we consider about such as push, pull, and hitting of an object causes the motion. Pulling of an object causes the motion. Pushing of an object causes the motion, and hitting an object causes the motion. It means that यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को पुश करते हैं तो उसके मोशन का कारण बन जाता है, कॉजेज बन जाता है, रीजन बन जाता है. हाउ दैट
there is no problem. If anybody asks us what are the causes of the motion of an body, एक बॉडी का कॉजेज क्या हो सकता है उसको मोशन में आने के लिए, देन पुशिंग, कूलिंग, या पुशिंग, कूलिंग एंड हीटिंग। अगर हीट कर देते हैं सच दैट, यदि किसी चीज को पुश करते हैं, किसी चीज को कूल कर देते हैं और किसी चीज को हीट कर देते हैं, सपोज दैट अगर हॉकी बॉल को हॉकी स्टिक से हीट कर दिया जाए तो हॉकी बॉल में मोशन आ जाता है। अगर फुटबॉल को अपने पैर से हीट कर दिया जाए तो फुटबॉल में क्या होगा, मोशन आ जाएगा। तो these are the causes which produce motion in a body। किसी बॉडी में ये सारी कॉजेज जो है क्या कर देते हैं, मोशन ले आते हैं। सो causes of motion are causes of motion, first one pushing, second one pulling, and third one heating of an object। So these are the causes of the motion। Hope that there is no problem to understand। कि कहीं पर दिक्कत है क्या इसको समझने में आप लोगों को? नो सर। देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। अगर किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो उसमें कौन सा कॉजेज प्रोड्यूस करना होगा, पुश कर देना होगा, कूलिंग और हीटिंग। हीटिंग। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हम लोग वी हैव आइडिया ड्यू टू द पुशिंग, ड्यू टू द कूलिंग एंड ड्यू टू द हीटिंग, एनी वन ऑफ दिस थ्री वी कैन प्रोड्यूस मोशन इन ए ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग मोशन को ला सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं यदि पुशिंग, कूलिंग और हीटिंग किया जाए। तो in our everyday life we observe that some effort is required to put a stationary object in motion or to stop a moving object। अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यदि कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, एनी बॉडी इज इन मोशन, तो उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब रेस्ट में लाने के लिए फिर क्या करना होगा, एफर्ट लगाना होगा। किस तरह का एफर्ट? तो वहां पर भी जो एफर्ट होगा, पुशिंग होगा, पुलिंग होगा और हीटिंग होगा। तो ये इट मीन्स दैट इसको मोशन, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना है तो ये थ्री कॉजेज को अप्लाई कर देना होगा, या फिर यदि कोई बॉडी मोशन में है तो ये तीन कॉजेज, एनी वन ऑफ दिस थ्री कॉजेज यूज टू ब्रिंग द बॉडी इन और एट रेस्ट, मतलब उसको रेस्ट में लाने के लिए ये सारे कॉजेज का यूज किया जा सकता है। तो इट मीन्स दैट वी हैव नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट, व्हाट इज द रेस्ट? देन इट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका एक नेचुरल स्टेट ही होता है किसी ऑब्जेक्ट का। नेचुरली कोई भी बॉडी जो है स्टेट में ही रहना चाहता है, और जब उसमें किसी तरह का कॉज लगा दे, पुशिंग, कूलिंग, हीटिंग अगर कर दे तो वो ऑटोमेटिक रेस्ट जो है आपका मोशन में आ जाता है। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। अब क्या होता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, पुल करेंगे, हीट करेंगे तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी। ये ऑब्जेक्ट और बॉडी का क्या करेगा, मोशन में ला सकता है। ये ऑब्जेक्ट और बॉडी के शेप को भी चेंज कर सकता है। टुगेदर विथ इट आल्सो ब्रिंग इनटू द मोशन और आल्सो ब्रिंग एट द रेस्ट। मोशन में भी ला सकता है, रेस्ट में भी ला सकता है,
उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके शेप को चेंज कर सकता है। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ये ऑल ऑफ जितना सारा चीज है, सो ऑल ऑफ दीज आर नोन एज द फोर्स। ये सारा चीज क्या है? फोर्स है। अगर आप किसी चीज, कोई भी चीज अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद यदि कोई बड़ी रेस्ट में और मोशन में आ जाता है, तो आप जिस चीज को अप्लाई किए हैं वही फोर्स है। अगर कोई बड़ी मोशन में है और आप कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं और वो मोशन वाला बॉडी यदि रेस्ट में आता है या उसके मोशन में चेंजिंग हो जाता है, तो आप जो 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 सारा चीज उसमें अप्लाई किए हैं वो आपका फोर्स है। इट मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ द फोर्स वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो कौन सा स्टेट होगा? रेस्ट और मोशन वाले स्टेट को। तो उसके लिए इट मीन्स दैट पुशिंग, पुलिंग और हीटिंग। सो पुशिंग इज ए काइंड ऑफ फोर्स। पुशिंग एक प्रकार का फोर्स है। पुलिंग इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स। हीटिंग इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स। With the help of the pushing, pulling, heating, we can change the state of an object. So if anybody asks us, what do you mean by force, then we have no problem to reply. With the help of anything, we can change the state of an object is known as the force. तो जिसके मदद से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को, और स्टेट कौन कौन सा होगा? रेस्ट या मोशन वाले स्टेट को यदि चेंज कर दे तो हम लोग उसी को बोलेंगे फोर्स। कोई दिक्कत है क्या समझने में? एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स दैट पुशिंग, पुलिंग और हीटिंग आप समझ सकते हैं इस चैप्टर में कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड या टॉपिक है या सब टॉपिक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अभी हम लोग को फोर्स के बारे में समझ में आ गया। फोर्स क्या कर सकता है? व्हाट कैन डू द फोर्स? सर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर सकता है। जैसे अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता दिस है। इज और नॉट अगर द motion में है नॉट तो द उसको पोजीशन, दिस इज द स्टेट, है ना। तो उसके मतलब क्या होगा? स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट किस, कौन सा स्टेट में रहेगा? या तो ऑब्जेक्ट आपका कौन सा स्टेट में रह सकता है? या तो रेस्ट वाला या तो स्टेट में रेस्ट में रहेगा, या फिर मोशन। मोशन में। तो ये फोर्स क्या करेगा? फोर्स क्या करेगा? सर उसके स्टेट को चेंज करे। है सर ना। उसके स्टेट को चेंज करे। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, यही ना। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, माने विरामावस्था। हिंदी में अगर बोले तो रेस्ट को हम लोग विराम बोलते हैं। तो विराम वाला जो स्थिति होगा, रेस्ट वाला जो स्थिति होगा, उस स्थिति में ये चेंजिंग ला सकता है। मोशन वाला जो स्टेट होगा, मोशन वाला जो स्थिति होगा, उस स्थिति में ये चेंजिंग ला सकता है। कौन? तो दिस इज द फोर्स, फोर्सिंग। ठीक है। सो यस सर। okay, force can change the state of rest and motion of an object. Instead of and we write down here और ही लिख देते हैं, अलग अलग नहीं होता है, ये दोनों में से किसी एक को रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और
मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, we try to understand balanced and unbalanced. So do you know what is the balance? Balance क्या Yes, होता है? sir. Then say Sir, sir, when force acting on a body, sir, is equal in both the sides. yeah, both side मतलब equal and what? So force acting in a body in both sides are equal. Force acting on a body both sides are equal. So in which type we understand a force acts in the both side? हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि एक फोर्स जो है किसी बॉडी में बोथ साइड वर्क कर रहा है? फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा ना, Yes, sir. तो फिर इसको कैसे समझे? आप इस फिगर में क्या देख रहे हैं? डिस्क्राइब द फिगर। बॉक्स के ऊपर बॉक्स। चलिए बॉक्स के ऊपर बॉक्स। बॉक्स के ऊपर बॉक्स। रिद्धि आप बताओ क्या देख रही है? Sir, box. ठीक है, एक छोटा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है। ये बड़ा बॉक्स कहाँ पर है? इसको हम लोग क्यूबॉइड बोलेंगे। ठीक है, नीचे। ठीक है, ये किससे टिका हुआ है? इसको कौन बैलेंस कर रहा है? सर जमीन, फ्लोर। अर्थ। ठीक है, इसको अर्थ या फ्लोर कर रहा है। और ये छोटा जो बॉक्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? सर जो पहला बॉक्स है वो उसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, बड़ा वाला बॉक्स है ही ना। अगर बड़ा बॉक्स नहीं रहता तो क्या होता? सर छोटा वाला बॉक्स फिर नीचे आ जाता और उसको अर्थ बैलेंस करता। अर्थ बैलेंस करता है। इट मीन्स दैट इसमें कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा, बड़ा फोर्स बड़ा बॉक्स के द्वारा छोटे बॉक्स में, और छोटे बॉक्स के द्वारा भी बड़ा बॉक्स में कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा। समझ में बात आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आप व्हाइट एरो देख रहे हैं यहाँ पर? यस सर। ये व्हाइट एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? इट मीन्स दैट एक फोर्स जो आपका वर्टिकली अपवर्ड लगा रहा है, ठीक है, और एक फोर्स जो है आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड कौन फोर्स लगाएगा? छोटा बॉक्स। सर यस सर। ठीक है, और बड़ा बॉक्स आपका वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। किस पर? छोटे, छोटा बॉक्स पर। ओके, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। छोटा बॉक्स जो है बड़े बॉक्स पर वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगा रहा है।
और बड़ा बॉक्स जो है छोटे बॉक्स पर वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स लगा रहा है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, ठीक है, ये दोनों फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये दोनों बॉडी क्या है, बैलेंस है। ठीक है, पहला बॉडी जो है दूसरे बॉडी पर बैलेंस हो रहा है और दूसरा बॉडी जो है पहले बॉडी के द्वारा बैलेंस हो जा रहा है। ओके, इट मीन्स दैट यदि मान लीजिए छोटा बॉक्स वर्टिकली डाउनवर्ड F1 फोर्स लगा रहा है, तो आपका बड़ा बॉक्स को छोटे बॉक्स को बैलेंस करने के लिए उतना ही फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं F1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बोलिए सर। फोर्स एक्टिंग ऑन सर, हाँ बोलिए, फोर्स एक्टिंग ऑन, क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड। ठीक है, तो इट मीन्स दैट सपोज दैट अ स्मॉल बॉक्स इज द फर्स्ट बॉडी and big box is the second body. It means that both boxes what, दोनों फोर्स क्या कर रहा है, दोनों बॉक्स क्या कर रहा है, सर एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहा है या एक्ट कर रहा है ना। बॉक्स ए और या स्मॉल बॉक्स एक्ट्स ए फोर्स ऑन द बिग बॉक्स एंड अदर फोर्स और बिग बॉक्स एक्ट्स ए फोर्स ऑन द स्मॉल बॉक्स। तो अगर उसको F1 और F2 सपोज कर लेते हैं तब क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा और नेगेटिव साइन यहाँ जो लगाए वो बता रहा है दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, अब ये पूरा सिस्टम हो गया, ये छोटा बॉक्स और बड़ा बॉक्स मिलके क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अगर किसी सिस्टम में इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस वर्क करता है तो वो सिस्टम क्या होता है, बैलेंस होता है। बट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ क्लास 9, क्लास 9 पर क्या होगा, क्लास 9 के लेवल में क्या होगा कि यदि कोई बॉडी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है और उतना ही फोर्स दूसरा बॉडी उस बॉडी पर एक्ट कर रहा है और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है या छोटा वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका बैलेंस में है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर और एक लगा देते हैं एरो का साइन, आप यहाँ ग्रीन एरो देख रहे हैं, यस सर। ये ग्रीन एरो कहाँ कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये आपका फ्लोर है सर। ग्रीन एरो सर, फ्लोर एक फोर्स लगा रहा है, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपका बिग बॉक्स जो है एक फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में बात आ रहा है, बिग बॉक्स यस सर। कहाँ पर फोर्स लगा रहा है, सर बड़ा बिग बॉक्स सर अर्थ में या फ्लोर में लगा रहा है, और फिर फ्लोर भी एक फोर्स लगा रहा है किसमें, बिग बॉक्स, और ये दोनों यदि इक्वल हो जाता है तब क्या होगा, बैलेंस फोर्स है। ठीक है, ओके, तो यही है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस फोर्स। फॉर दिस वी नीड एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट,
हम लोगों को कितने ऑब्जेक्ट का जरूरत हो जाएगा? 2 ऑब्जेक्ट। उसमें से एक ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाएगा, ठीक उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर लगाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। तो such types of the forces is known as the बैलेंस forces। इस प्रकार के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ओके। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हमारा कंसेप्ट यहाँ से आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। जैसे ही बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को समझ जाते हैं, नो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। लेट्स सी द श्रुति बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। आपको रिद्धि बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपके पास क्या कंसेप्ट है? सर जो मतलब जितना फोर्स सर अप्लाई होता है उतना फोर्स ही सर दूसरे डायरेक्शन में रिवर्स कर जाता है। सर ये तो थर्ड लॉ ऑफ ये मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है रिद्धि, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अभी हम लोग जो लगा रहे थे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ये बताओ। सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है ना कि एक ऑब्जेक्ट ना हाँ, रेस्ट पर रहेगा या तो वो ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। ठीक है। देखिए, एक मतलब क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट को रिटेन करेगा, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहेगा। और कब तक रहना चाहेगा जानते हैं? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई फोर्स अप्लाई ना है ना। जैसे ही उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया जाएगा, उसमें कुछ न कुछ वो चेंजिंग हो मोशन जाएगा। में आ जाएगा, नहीं तो रेस्ट में आ ठीक है, जाएगा। मतलब अपने जो इनिशियल स्टेट को चेंज कर देगा। इनिशियल स्टेट क्या हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का? सर जो रेस्ट सबसे और पहले उसका पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का आपका इनिशियल स्टेट आइदर एनी वन ऑफ दीज टू, दोनों में से कोई एक होगा। पहला क्या है तो रेस्ट होगा, दूसरा क्या है मोशन में। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी से रिलेटेड है। कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका या तो रेस्ट में रहेगा या फिर किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। और कब तक रहेगा जानते हैं? कब तक रहेगा? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया जाए। जैसे ही उसमें आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया जाएगा, उसमें क्या होगा? चेंजिंग आ जाएगा, उसके मोशन में चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, उसके मोशन में क्या आ जाएगा? चेंजिंग आ जाएगा। अगर इसको बिल्कुल अगर हिंदी में अगर हम लोग समझे तो हिंदी में हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं, बट वी आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम, देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस वन इन हिंदी। यदि हिंदी में समझना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझ भी जाते हैं और मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो समझने में भी कोई बुराई नहीं है। इट मीन्स दैट कहता है कि वस्तुओं की किसी अनाथ तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, ठीक है, जब तक कोई बाह्य बल, जिसको हम लोग बोल देते एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा, वस्तु एक निश्चित गति से चलती है। उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनाथ तल पर लुढ़कती है, उसका वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू द अनबैलेंस गुरुत्वीय बल, मतलब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों यहाँ पर जब बैलेंस फोर्स था, जब फोर्स बैलेंस था, ठीक है, उस समय इसमें मोशन हो रहा था क्या? दोनों में, दोनों का दोनों किस में था? रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही अनबैलेंस हो जाएगा,
एक का फोर्स ज्यादा हो जाएगा और एक का फोर्स कम हो जाएगा, मतलब आपका F1 नॉट इक्वल टू F2 होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा जानते हैं, ये मोशन में आ जाएगा, फिर बॉडी मूव कर। बॉडी मोशन में आ जाएगा। देखिए इस फिगर को यहाँ पर ऐसे समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा ले लेते हैं हेल्प। ये देखिए अब फिगर कैसा लग रहा है आपको, बैलेंस नहीं होने के कारण ये क्या हुआ, मोशन हो गया टुवर्ड्स द किधर, स्मॉल बॉक्स किधर चला गया, बिग बॉक्स की ओर। बिग बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स हो गया। तो यहाँ पर बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बोलता है कि जैसे ही आप किसी कोई भी बॉडी जो है या तो इनिशियल स्टेट में रहेगा या तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, जैसे ही उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा और अनबैलेंस्ड होने के कारण वो अपना मोशन या रेस्ट वाला जो कंडीशन है उसमें चेंजिंग लाएगा। उसमें क्या करेगा, चेंजिंग लाएगा, ठीक है, उसमें क्या करेगा वो चेंजिंग लाएगा। तो चेंजिंग आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसी नियम को हम लोग गति के पहले नियम से जानते हैं और इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट इस तरह से हो जाता है, अगर आप लोग हिंदी में इसको समझते हैं तो प्रत्येक वस्तु अपनी अस्थिर अवस्था, ठीक है, मतलब रेस्ट वाला पोजीशन या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ओके, अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देख लेते हैं तो इंग्लिश वाला कंडीशन में हो जाएगा कि ए बॉडी कंटिन्यू इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ मोशन, व्हाट विल बी द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दोनों में से कोई भी बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिए। Sir, a body continue its position of rest or motion until external force is applied on it. अच्छा आप बताइए धैर्य, क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Okay, sir. If a body is at rest, it will remain at rest, and a body with uniform motion will remain in uniform motion until an external force is applied in the body. चलिए अब देखिए हम लिख देते हैं, उसको पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स, कौन सा अवस्था में रिमेन्स करेगा ये बोलिए, Either in rest or in motion. रिमेन्स इन ए स्टेट, कौन सा स्टेट बोलिए, Sir, either rest or in motion. रेस्ट और व्हाट, इसका जो मोशन होगा वो Motion. यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पर, इन ए स्ट्रेट लाइन, कब तक, कब तक, Till external force is applied on it. तो जब तक एक external force नहीं apply हो। अनलेस, कब तक, अनलेस, और external force जब तक apply नहीं होगा, external force is applied. इसको और यदि लिख देते हैं तो अनलेस कंपेल्ड to change that state by an applied force. External. So this is the written statement of the first law of motion. ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या है, बोलिए,
क्या है? दिस इज द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. रीड वंस अगेन वन बाय वन बोथ ऑफ यू. आप लोग दोनों एक एक बार इसको पढ़िए तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को. An object remains in a state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to that state by an applied force. तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. धैर्य एक बार आप देख लीजिए तो. Okay, sir. An object remains in a state rest or uniform motion in a straight line unless compelled to that state by an applied force. Anybody has problem to understand this statement? No, sir. तो इट मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स, मतलब आपका एक ऑब्जेक्ट जो है रिमेन्स करता है अपनी अवस्था को. कौन सी अवस्था को? या तो रेस्ट वाली अवस्था या तो motion. या फिर यूनिफॉर्म मोशन वाली अवस्था को. कहाँ पर? इन ए स्ट्रेट लाइन. यूनिफॉर्म मोशन जो होगा, यूनिफॉर्म मोशन जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा. यूनिफॉर्म मोशन का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जिगजैग नहीं होगा. ठीक है. कब तक? जब तक यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आपको आप लोग को पता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किनके द्वारा दिया गया था? सर गैलीलियो. सर न्यूटन. एक्चुअली में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन has been proposed by Sir Isaac Newton in 1679 in his most important book Principia. ठीक है. प्रिंसिपिया नामक बुक में सर आइजक न्यूटन के द्वारा ये आपका दिया गया था 1679 में, 1679 में. ठीक है. तो ऐसा करते हैं, आज के क्लास को यहीं पर ओवर कर देते हैं. ठीक है. और फिर आपका नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर कंसीडर करेंगे. एक बार क्लास को ओवर करने से रिकैप कर लेते हैं, क्लास को ओवर करने से पहले. तो टुडे वी हैव गॉट आइडिया अबाउट force and laws of motion with respect to position, velocity, acceleration, and we have two types of motion, uniform and non-uniform. Rest is the natural state of an object, and due to following causes we get the motion or rest of an object. These causes are pushing, pulling and hitting, and also we got idea about balanced and unbalanced forces, and for this we take the help of this figure. In case of balance, equal and opposite forces act in two bodies by each body, and both are equal and opposite direction. And at last we discussed about the first law of motion. An object remains in a state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to that state by an applied force. तो इतना ही सारा चीज आज हम लोग डिस्कस किए और समझने का प्रयास किए. होप दैट नीट के लिए ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट के जैसा वर्क करेगा. क्लास 9 के विद्यार्थी के लिए अपना सिलेबस के आधार पर ये वर्क करेगा. और यदि कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट के यहाँ पर या कैंडिडेट है तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा. तो आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, और अगला क्लास जो होगा वो आपका सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड होगा. टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. चलिए, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद.